दोबारा शुरू करते हैं। खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will discuss properties of materials, and I'll facilitate you people for knowing about the properties which were used to characterize materials, especially dental materials. So if we go there, for ascertainment of evaluation of anything, we have to know about their properties. Why properties? To evaluate the performance of a material with the help of properties which are characteristics of that particular material. It will be easy for us to evaluate the performance of that particular material. For evaluation of performance of a material, many factors will be considered, and situation where the material is used is of primary importance. As we all went through the previous lectures, in which we have studied that dental materials are science of dental material is the branch of science which deals with the properties and then their composition and what the environment where these are placed. So the situation where a material is going to be used is also an important factor about the properties of a material. So it also involves the manipulation. Manipulation means to work upon that, to prepare that material. In situ, all of you know that it means that in its original place. In vitro and in vivo, you all have an idea that what is in vitro and what is an in vivo. Is it clear? Yes, sir. Acha ji. In situ mean in its original place, in vitro mean in lab, in vivo in organism. Inside the body. Inside the body. Thank you ji, badi मेहरबानी जनाब. Now, इसके बाद जी हमने कहाँ जाना है जी के properties usually considered or can be seen or can be evaluated in different situations, like unmixed material have its own properties. During mixing, manipulation and setting, it have its own properties. Then set material have its own properties. Physical and chemical properties are another type which we can evaluate. Working time and setting time. So anybody can explain me the working time and the setting time? सर वर्किंग टाइम सर ऐसा टाइम होता है ना कि जिसके अंदर मटेरियल भाई मेरे भाईजान इंग्लिश में बोलो ना यार. Working time is that time in which we can mix the materials and manipulate with them, while the setting time is the in which the material freezes.
or sets is known as setting time. Sir, working time is that time in which we can easily manipulate the material, and setting time is that time in which we can take out the material without any distortions or fracture. सर ये आपको कुछ नजर आ रहा है? ये स्लाइड नजर आ रही है? Yes, sir. इस पे क्या अभी लिखा आ हुआ रही है। वर्किंग टाइम? क्यों पहले नजर नहीं आ रही थी? नहीं अभी तो नजर आ रही वर्किंग है। टाइम और सेटिंग टाइम अभी आई है। ठीक है जी। टाइम अवेलेबल फॉर मिक्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ मटेरियल इज वर्किंग टाइम. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मिक्सिंग. ये वर्किंग टाइम होता है. जो ही हमने मिक्स शुरू किया, वर्किंग टाइम शुरू हो गया. एंड सेटिंग टाइम, इट्स एन आर्बिट्रेरी टर्म. सेटिंग टाइम वो वाला टाइम होता है taken by a material to attain certain level of rigidity or elasticity. Rigidity और elasticity. हमारे पास दो ही तरह के मटेरियल आते हैं ना, या रिजिड होंगे या वो इलास्टिक होंगे. इंप्रेशन लेना है तो इलास्टिक मटेरियल होंगे. प्रोस्थेसिस बना के देना है या कोई फिलिंग वगैरह करनी है तो उन्होंने उनका एंड जो होगा वो क्या होगा, वो रिजिडिटी होगी. ठीक है ना जी. और जो इलास्टिक भी होगा मटेरियल, उसने भी आखिर में रिजिडिटी की तरफ ही जाना है. ठीक है ना. पहले वो फ्लूइड होगा, हम जब इंप्रेशन लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो रिजिड होता जाएगा. उसके अंदर जो होगा क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी डेवलप होती जाएगी. ठीक है जी. Yes, sir. अच्छा, मैंने कहा शायद आवाज कुछ कम आ रही है. अच्छा जी. Now, usually properties of unmixed material were evaluated and explained by manufacturers. ठीक है जी. And these manufacturers usually perform it in their own settings, and they have evaluated the optimal performance of a material. Optimal performance का मतलब कि जो मतलब ऐसी परफॉर्मेंस जो दोनों में बराबर हो, ना बहुत ज्यादा ऊपर हो और ना बहुत ज्यादा नीचे हो. ठीक है ना जी. मैक्सिमम से मतलब मैक्सिमम भी नहीं कह सकते, ऑप्टिमम और मैक्सिमम में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल होता है और ऑप्टिमम जो होता है वो एक मिड लेवल होता है. ये आप लोगों के समझाने के लिए. ठीक है जी. नॉर्मल, ऑप्टिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज हो गई. जी जी बिल्कुल. नाउ देन हाउ दे judge or evaluate these performances through quality assurance programs and then clinical trials of that particular material. अच्छा जी. अब होता क्या है कि जी जी शेल्फ लाइफ, हम एक चीज पूछते हैं अमूमन, व्हाट इज शेल्फ लाइफ. तो शेल्फ अगर लाइफ, हम किसी लेबोरेटरी से कोई चीज अपने कैबिनेट में रखें और वो खराब ना हो, रखेंगे. शेल्फ लाइफ ज्यादा हो. जी जी. शेल्फ लाइफ जो होती है तो वो यही होती है कि the life of a material which can be stored for a particular time will be its shelf life. ठीक है जी. तो शेल्फ लाइफ जो होगी हमारी वो क्या होगी जी. ज्यादा. अमूमन हमें ज्यादा चाहिए होती है. मटेरियल ज्यादा जल्दी खराब ना हो. जी जी बिल्कुल. एंड टू इंक्रीज shelf life of a material, what we have to do, for some materials we have to take that particular material in refrigerator to increase the shelf life of that particular material, and for some materials we have to put these materials away from moisture. ठीक है जी.
and Away for from some sun. materials it will be placed in a humid material. For some material it should be placed in a non-humid material. So many situations are there. ठीक है जी. बाज मटेरियल हमारे ऐसे होंगे. जी जी. सर ये जो शेल्फ लाइफ है सर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी से भी डिपेंड करेगा ना कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं. हाँ यानी हाँ. वो तो उस पे तो यानी अगर वो सपोज करें ह्यूमिडिटी भी खराब नहीं होता तो हम लोग उसको ह्यूमिड कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, हाँ और अगर खराब खराब हो होता हो तो हम लोग उस पे वो रख देंगे. सही हो गया सर. ठीक है जी. अच्छा, अब हम अगर शेल्फ लाइफ को बाज़ औक़ात ये होता है कि उसमें हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी कि वो हम जरा जल्द उसको वो करें. शेल्फ लाइफ जो है इसका जो एक और चीज है वो एजिंग भी होती है हमारे पास कुछ मटेरियल्स में, कि अगर हम वो फ्रेशली मटेरियल जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल को यूज करना चाहें वो हम यूज नहीं कर सकेंगे. तो फिर हम क्या करते हैं, वी टेक दिस मटेरियल एंड पुट इट इन एन accelerated temperature or at an elevated temperature. So we can accelerate aging through putting a material at elevated temperature. Commonly it is 60 degrees centigrade, followed by evaluation of material properties. वही आप वाली बात कि हम उसको ज़हन में रखते हुए कि उसकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हुए, ये नहीं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिटोरिएट कर रहा हो. ठीक है जी. और हम उसको क्या करें, उठाकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख के अपने लिए काम ढूंढ ले. ठीक है जी. क्लियर जी? क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Now, how we can evaluate the shelf life of a material? Through date of manufacturer or manufacturing, batch number which are written on their containers, and the expiry date. ठीक है जी. आयशा माइक बंद कर. ठीक है जी. ठीक है. एक्सपायरी डेट से हमें उस मटेरियल की क्या पता चलती के है? बारे में पता चल जाता है. ठीक. शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ का पता चल जाएगा. नाउ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग मिक्सिंग, मैनिपुलेशन एंड सेटिंग. अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो एन अदर टाइप ऑफ मटेरियल, सॉरी, प्रॉपर्टीज व्हिच वी कैन. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, खैर दोबारा कर लेते हैं. हमें क्रिस्टल क्लियर आ रही है सर. खैर है, बस वो बाज़ औक़ात हो जाता है बेटा. सर पता नहीं. खैर ये तो होगा. नहीं आ रही. सॉरी सर. कोई ऐसी बात नहीं. खैर है, कोई ऐसा मसला नहीं है. ये फिर भी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, फिक्र ना करें आप. अगर ना भी हो तो मैंने आपको बार बार कह चुका हूं कि आप बाद में भी पूछ सकते हैं. सो जी, आप क्लियर हुई? जी. या सर. चलें, ठीक है. सो another type, as we are dealing with properties, so physical properties are another type of properties which we have to see in a material. So physical properties में क्या हो सकती हैं? These are. जी सर बोले. हाँ, बोले. आप क्या कहना चाह रहे थे? नो सर, बस वो नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी. सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल. बस सीधे किसे खत्म. ठीक है जी. सो विस्कोसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर इट इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी. इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी है इसमें, लेकिन कलर जो है एज अ होल जो है इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी में ही लेते हैं. थर्मल टेम्परेचर. जी, टेम्परेचर. हाँ, टेम्परेचर हो गया. मैं वही बताने जा रहा हूँ, रिलेटेड टू थर्मल भी नहीं. पीएच केमिकल में आ जाएगी. ओके सर.
रिलेटेड टू थर्मल बिहेवियर हो जाएगी, एंड टार्निश एंड कोरोजन, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर particularly related to the physical state Physical. of a material. So obviously when we consider about physical properties, another name comes into our mind, and which is mechanical properties. Now mechanical properties are those properties which are स्ट्रेस pertaining, कंप्रेशन हो गई, हाँ नहीं, which So are उसकी डायमेंशन से pertaining, डिपेंड करती है। पहले मेरी तो सुन लो भाई मेरे, which are pertaining to the motion of a material, ये ध्यान में रखें। मैकेनिक्स वहीं पे अप्लाई होगी जब कोई भी मटेरियल मोशन में होगा, तो ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है जी। नाउ स्ट्रेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव, फ्रैक्चर, क्या आ गए जी, चेक, शेयर, शेयर, बिल्कुल बिल्कुल ट्विस्टिंग फोर्स हो गया, ठीक, टॉर्जन फोर्स हो गया, बिल्कुल जी, कंप्रेसिव, फ्रैक्चर, टेंसाइल, ठीक है जी। अब उसके बाद हम चलते हैं, मतलब इसमें ये वाह साहब अभी आए हैं, ड्रोन, हाँ ना, ड्रोन जो है ये ड्रोन है, किलर, किलर साथ बोले सर, किलर। इसीलिए मैं उसको ड्रोन ही कहता हूँ किलर के ऊपर नहीं जाता उसके। अच्छा सर जी, यही तो बात है, किलर है सर। हाँ सचमुच का किलर है। जी सर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्यों सोए हुए थे आज? अच्छा जी, नो सर, चलें ठीक सर है, उठा हुआ था। चलें जी ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मिक्सिंग, अब मैंने कहा पीछे से उसको फिर वापस आपको लेके आऊं ना, कि मतलब वो थोड़ा सा आपके ज़हन में प्रॉपर्टीज का एक फ्लो बन जाए। Properties of material during mixing, manipulation and setting, which they mainly involve the rheological properties. Rheological का मतलब पता है? फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज जबरदस्त रियोलॉजिकल। जबरदस्त, ठीक है जी। And the way in which these changes or these change as a function of time during setting. Rheological properties हमारी टाइम के साथ साथ चेंज जब होंगी तो उनको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना जी। वरना तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो पानी की भी टाइम बहुत ज्यादा गुजर जाए तो मतलब चेंज हो जाती है, पानी पड़ा पड़ा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें से इवेपोरेट हो जाता है और नीचे कुछ ना कुछ जो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसको थिक कर देते हैं। लेकिन मिनरल्स, वी आर शॉर्ट टाइम, वी आर इवेलुएटिंग और शॉर्ट इन टाइम। सर यानी सर ये जो जी जी सर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर टाइम डिपेंडेंट होंगी और मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस से भी डिपेंड करेगी, कितना मैग्नीट्यूड पे अप्लाई हो रहा है स्ट्रेस, कितने पे नहीं हो रहा, इससे भी डिपेंड वो करेगी। तो अलग बात है ना, लेकिन हमने तो शॉर्ट टाइम जो है ना रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है जो कि हमारे किसी मटेरियल में होंगी। लॉन्ग टाइम जो होते हैं वो तो फिर बाद में दूसरी प्रॉपर्टीज बन जाती है ना। ओके सर। अच्छा जी, नाउ इफ वी हैव प्रोवाइडेड अ टू कंपोनेंट मटेरियल लाइक टू पेस्ट्स और पेस्ट लिक्विड और पाउडर लिक्विड, नाउ ease of mixing, so we have to mix all these materials if two component mix material is provided to us, ठीक है जी। देन है कुछ यस सर। टू कंपोनेंट मटेरियल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं सर एक जो जेडनो जी? यूजिनॉल और वो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, बिल्कुल। और सर टू कंपोनेंट्स में हमारे पास सर ये प्लास्टर हो गए। जी 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 ठीक है जी। सो व्हेन क्योंकि वी सर कहते हैं वाटर कंसीडर, पाउडर रेशियो हाई होता है up to 0.60। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, में when we consider their mixing, which now it depends on the factors. Number first factor is the chemical affinity, ठीक है जी, how they are affiliated or they are attracted chemically toward each other. We have discussed the chemical affiliation of materials through
van der Waals forces to hydrogen bonding to ionic bonding, and all of you are well aware of these type of bonds. The second one is the viscosity of the material. Third one is the ambient temperature, the temperature of atmosphere. And the fourth one is the method of dispensation, how we dispensed. ठीक है जी, कितना हमने पानी लिया, कितना हमने पाउडर लिया. थिक करना है तो हमने लिक्विड या जो पानी होगा वो कम लेंगे, थिक करना है तो लिक्विड या पानी जो है वो हम ज्यादा डाल देंगे. And method of mixing. So method of mixing usually we have implied is a streak free mixing. ठीक है जी? Yes. चलें जी, थैंक यू जी. आगे चलते हैं. जैसे सर कंसिस्टेंसी कह सकते हैं किसको? ये मोड ऑफ मिक्सिंग को. नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी और चीज होती है बेटा. कंसिस्टेंसी तो विस्कासिटी में चली जाएगी. अच्छा, थिक कंसिस्टेंसी के थिन कंसिस्टेंसी है, हाँ तो वो विस्कासिटी में आ जाती है ना. वो तो विस्कोसिटी में है सर. ठीक है जी. अच्छा जी, उसके बाद जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशंस हमेशा हमने रखनी है. उसमें प्रोपोर्शनिंग, टाइम और कंसिस्टेंसी हमने हमेशा ज़हन में रखनी है. तो ये जो होगी हमारी मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन जो होती हैं हमारी, उसमें क्या होगी? केमिकल, ये एफिनिटी होगी, विस्कोसिटी, एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह जी. मतलब क्या कह रहा? तो इसके अंदर अगर हम करें ये चीज कि केमिकल एफिनिटी, अच्छा ये तो हो गई. सॉरी. सो अच्छा जी. नाउ प्रोपोर्शनिंग, टाइम एंड कंसिस्टेंसी. ठीक है जी. ये हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर कंसिडर करेंगे किस चीज के लिए? किसी भी मटेरियल की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हम जब हम मिक्सिंग करने लगते हैं. तो नंबर 1 इज प्रोपोर्शनिंग, नंबर 2 इज द टाइम, एंड नाउ द कंसिस्टेंसी, द विस्कोसिटी. ठीक है जी. जब तक प्रोपोर्शनिंग नहीं होगी और उसको किसी खास टाइम तक हम मिक्स नहीं करेंगे, कोई कंसिस्टेंसी या कोई विस्कोसिटी उसकी नहीं बनने वाली हमारी. इज इट क्लियर? यस सर. अच्छा जी. इसके बाद जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉरी mechanical mixing is another type of mode of mixing of a material. So mechanical mean जो खुद मिक्स करते हैं सर मैकेनिक्स के थ्रू. मैकेनिकल में खुद तो नहीं करते, नहीं मैकेनिक्स के थ्रू करते हैं. सॉरी सर जी. ये हमजा हसन अभी आ रहा है, इसको क्या हो गया? उसको को अभी है तो हम जाने का सोच रहे हैं. अच्छा जी, मैकेनिकल मिक्सिंग ऐसी होती है जो हम किसी मैकेनिकल मीन से करें. मैनुअल जो होती है ना वो हम हाथ से करते हैं. और मैकेनिकल जिसमें कोई डिवाइस हमारे पास आ जाता है, चाहे वो मैनुअली ही डिवाइस हो, लेकिन वो डिवाइस जो होगा वो काम ऐसे करेगा कि वो खुद ब खुद करेगा. थोड़ा सा इनपुट हम देंगे, बाकी इनपुट उसकी अपनी होगी. ठीक है जी. और वो दूसरा भी हो सकता है कि हम उसको किसी स्विच कर दें किसी चीज के साथ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ या किसी और सोर्स जो होगा एनर्जी उसके साथ, तो उसके साथ वो जो चले. ठीक है जी. और ऐसा करते हैं कि एक 2-3 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं. ठीक है जी. सेटिंग ऑफ एनी मटेरियल, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर दोबारा बोलिए सर. Setting time is an arbitrary term. Why? Because we have studied the phenomena of hysteresis, that lagging behind. So when we are considering that this material is set
but the phenomena of hysteresis pushes the setting of that particular material beyond the time which we have considered that it has a set material, but the setting go beyond that time. So the setting time which we are going to explain is an arbitrary term, or which we have considered that it is a set material, it is a arbitrary terminology. Is it clear? यस सर, कोई फिक्स वो नहीं है इसका यानी? हाँ, तो उसमें लाजिम आता है नहीं, उसके बाद भी फिक्स तो हो ही Yes, हो sir. जाता है, क्योंकि उसको हम देखने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। जब हम किसी मटेरियल को चेक करते हैं कि ये सेट हुआ है या नहीं, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम किसी मटेरियल की सेटिंग चेक करते हैं। तो वो अमूमन हमारे इधर होती हैं जिनको हम कहते हैं जी सेटिंग के लिए गिलमोर नीडल या वाइकैट नीडल। तो वो उसके ऊपर हम देख लेते हैं, तो वो नीडल होती हैं जिनका अपना एक डायमीटर होता है। तो जब हम उसके ऊपर रखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये जो नीडल है हमारी पेनिट्रेट कर रही है। अगर वो पेनिट्रेट कर रही है, द मटेरियल इज नॉट सेट, एंड इफ that needle doesn't penetrate into that material or stops penetrating in the material, so we say that this material is now set. सर उससे तो स्ट्रेस भी चेक कर सकते हैं ना मटेरियल की? क्या चीज? स्ट्रेस प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं? नहीं, स्ट्रेस उसमें तो नहीं आ सकती ना, वो तो हमसे तो नहीं आ सकता। नीडल से स्ट्रेस कैसे चेक करेंगे? स्ट्रेस तो जो होती है वो अभी हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, स्ट्रेस वगैरह पे। स्ट्रेस तो देखें उसके एक अपनी पर्टिकुलर एक वो है, डेफिनेशन है कि हम उसके ऊपर किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम कोई स्ट्रेस डालेंगे, तो इसमें हम स्ट्रेस तो नहीं डाल रहे, इसमें तो हम उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ सेटिंग की चेक कर रहे हैं। सर क्या वर्किंग टाइम भी आर्बिट्ररी हो सकते हैं? नहीं, वर्किंग टाइम तो आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्किंग टाइम तो हमारा चलता ही उसी में है ना, कि मिक्स किया शुरू हो गया और बस जब उसको हम नहीं का मैनिपुलेट नहीं और नहीं कर सकते, बस खत्म हो गया। ओके सर, ठीक है जी। अच्छा जी, सेट मटेरियल के अंदर अगर हम देखें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट मटेरियल, सो we have to consider about the suitability of a product for any application after its setting. ठीक है ना जी। अब एक चीज है, हम किसी के मुंह में लगा रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि यार ये सेटिंग के बाद इसका क्या होगा। अगर वो नरम है और सेटिंग के बाद भी उसने नरम ही रहना है, तो फिर तो वो किसी काम की नहीं है हमारे। हमें तो उसी वक्त चाहिए होगी कि वो जब हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो नरम हो, लेकिन जब वो मुंह में चली जाए, जब वो दांत में लग जाए, तो फिर वहां पे जाके वो हार्ड हो जाए। ठीक है जी। यस सर। The other thing is the durability of the material. So durability mean durability in the oral environment. Durable तो हर